October, November 2023, and variant is 53. First question of this paper is of a discrete random variable. Discrete random variable. Becky sometimes works in an office and sometimes works at home. Becky sometimes works in an office and sometimes works at home. The random variable x denotes the number of days that she works at home in any given week. It is given that probability of x is equal to kx into x plus 1, where k is a constant and x will take values 1, 2, 3 or 4 only. Draw up the probability distribution table for x. Draw up the probability distribution table for x, जिसको हम पीडीएफ भी कहते हैं, probability density function. Probability distribution table for x giving the probabilities as a numerical fractions. This is the relation. Probability of x is equal to x is equal to kx into x plus 1. Now different values of x are given. X will take only the values 1, 2, 3, 4. तो अब हम x की वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज आएंगी. x इज इक्वल 1 पे प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 पे और 3 पे, इस तरह 4 पे. तो उसके बाद हम k की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे. सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 होता है. तो सो x इज इक्वल टू 1 पे putting x is equal to 1, we get probability of x is equal to 1 is equal to k into 2 1 plus 1. यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, 1 plus 1 2 हो जाएगा, ये 2k आ जाएगा. तो so we get here 2k. Now probability of x at x is equal to 2, we get probability of x is equal to putting x 2. So we get 2k into 2 plus 1 3, we get 6k. Now x is equal to 3, putting x is equal to 3 in the same relation. 3k into 3 plus 1 4, we get 12k. In the same way, x is equal to 4, probability x is equal to 4, 4k into 5, that is 20k. अब हम ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में प्रोबेबिलिटी का सम होता है 1. नो प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल 1, एक्स इज इक्वल 2, एक्स इज इक्वल 3, एक्स इज इक्वल 4, ये प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके हम 1 के इक्वल पुट करेंगे. प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में. सो sum of probabilities of x is equal to 1. So we get 2k plus 6k, 2k plus 6k plus 12k plus 20k. 12k plus 20k is equal to 1. So adding these 20 plus 12 plus 6 plus 2, we get 40k. So 40k is equal to 1. 40k is equal to 1. From here k is equal to 1 over 40. अब ये k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है. k की वैल्यू दैट इज 1 over 40. तो इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं. दिस विल बी द टेबल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल.
यहाँ पे x, यहाँ पे probability of x. There are four values of x, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. अब probability against 1 जो है वो 2k है. 2k की वैल्यू जो है 1/40 है, तो we will write 2/40. तो so 1 के अगेंस्ट हम लिखेंगे 2/40. इसी तरह 2 के अगेंस्ट probability of 2 जो है that is 6k. k की वैल्यू 1/40 है, तो so 6/40. इसको आपने सिंप्लीफाई नहीं करना बिकॉज वी हैव टू गिव द प्रोबेबिलिटीज एज अ न्यूमेरिकल फ्रैक्शन. तो न्यूमेरिकल फ्रैक्शन में आपने इसको लिखना है. नेक्स्ट इज 12/40. नेक्स्ट इज 20/40 बिकॉज हमारे पास k की वैल्यू 1/40 है. तो ये कंप्लीट हो गया. ये दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर x. Now next part B of this question. Now with the help of this table we will find Ex and variance of x. Ex जो है that is the mean value of x. Variance of x means spreadness of x. X is the variable. Ex का फार्मूला होता है Ex expected value of x. Mean भी कहते हैं इसको, mean value of x. Summation x into px. X into px. These are the values of x और ये उनकी related probabilities हैं. इनको multiply करके add कर देंगे. तो so we get ex is equal to 1 into 2/40, that is 2/40 plus 2 into 6/40, that is 12/40. Next is 3 into 12/40. इनको multiply करेंगे we get 36/40. Next will be 80/40. 80/40. Finally we get 130/40 and will be 13/4. This is the mean of x, जिसको ex से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. 13/4 आ गए. अब हमने वेरिएंस फाइंड करना है. वेरिएंस ऑफ एक्स, इसका फार्मूला होता है वेरिएंस ऑफ एक्स. दिस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. वेरिएंस ऑफ एक्स का फार्मूला यहाँ पे इस चैप्टर में होगा ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर. मीन ऑफ द स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ द मीन. ई एक्स मीन होता है, यहाँ मीन का स्क्वायर है. ये क्या है? मीन ऑफ द स्क्वायर. अब हमारे पास ex जो है वो हमने पहले फाइंड कर लिया 13/44. तो अब ex स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे? ex स्क्वायर के लिए हम यहाँ पे ये देखें, दीज आर द वैल्यूज ऑफ x. तो हम एक और टेबल बनाएंगे x स्क्वायर के लिए. यहाँ x स्क्वायर की वैल्यूज लिखेंगे. तो x स्क्वायर के लिए हम सेपरेट बना लेते हैं टेबल. These are the values of x. 1, 2, 3, 4 probabilities. Two over 40, 6/40, 12/40, 20/40. और यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ एक्स वन का स्क्वायर जो है वो 1 होता है. 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16. अब हमने क्या करना है? ई एक्स स्क्वायर फाइंड करना है. ई एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स. ये ई एक्स स्क्वायर
ऐसे आएगा ई एक्स स्केयर समेशन ऑफ एक्स स्केयर इंटू पी एक्स स्केयर को पी एक्स से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। तो वी गेट 2/40 2/40 प्लस 24/40 प्लस 108/40। हम एक्स स्केयर को पी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनको ऐड भी करना है। 108/40 प्लस 320/40। फाइनली वी गेट पी एक्स स्केयर जो है वो 4, इनको ऐड करेंगे तो वी गेट 454/40। तो ये ई एक्स स्केयर की वैल्यू आएगी 454/40। नो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ ई एक्स स्केयर हेयर इन दिस फार्मूला। और ई एक्स की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड कर ली हुई है 13/4। तो वी गेट variance of x will be 454/40 minus 13/4 square. So after calculation we get 11.35 minus 10.5625. So we get it 0.7875, but we have to give the answer correct to three significant figures. So finally answer is 0.788. This is the final answer. This is the variance of x.